See, now in the last lecture, we have finished everything with the conductivity and molar conductivity. Even we have also seen how to measure the molar conductivity. Sorry, have you seen the how to measure the molar conductivity? What was the last topic we have done? Yes, anyone remember? Please. Yes, okay, we have done the numerical. So now today we'll be going with the measurement of conductivity. Measurement of conductivity. Have we done this topic, measurement of conductivity? No. Yes. One minute, just look at this diagram and the picture and just tell me, have you all done this topic last time on last Thursday? Okay, thank you, Vignesh. Okay, now I'm starting with the measurement of conductivity. How the conductivity can be measured. Of course, conductivity and molar conductivity. The very first point I can just write down here, that is the conductivity of solution. Conductivity of solution can be determined from or by measuring the resistance of solution using Wheatstone bridge. I think Wheatstone bridge name you must have heard in the physics practical. The Wheatstone bridge experiment is used to measure the resistance of unknown wire or unknown material. See here, if I want to measure the conductivity of the solution, then how do we measure? The conductivity of the solution can be determined by measuring the resistance of the solution. मतलब जिस solution का आपको conductivity find out करना है, उस solution का आपको सबसे पहले क्या measure करना पड़ेगा? Resistance measure करना पड़ेगा. और resistance measure करने के लिए कौन सा apparatus use करना है? Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, correct? I'll repeat again. हमें जिस ये पूरा ये हमारे एक्सपेरिमेंट का एम है कि अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर मेजर करना है, व्हाट इज कंडक्टिविटी? द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी मेजर करना है तो उस सॉल्यूशन का मुझे क्या मेजर करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा. एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग व्हिच इंस्ट्रूमेंट? Wheatstone bridge, करेक्ट? ये हमारा एम है. नाउ अभी अगर मुझे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है, देखो कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो कंडक्टिविटी के लिए सॉल्यूशन का पहला क्या मेजर करना? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे apparatus यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. The apparatus I am using to measure the resistance of the solution is called as what? Conductivity cell. Okay, मतलब मुझे सॉल्यूशन का पहले क्या मेजर करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मैं apparatus यूज करूंगा उसे हमें क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी सेल. तो अभी पहले हमें देखना है कंडक्टिविटी सेल क्या होता है. करेक्ट, कंडक्टिविटी सेल क्या है? What is conductivity cell? I just draw a diagram here. It consists of a glass tube. It consists of glass tube.
with, ये ग्लास ट्यूब है, and in that glass tube we are having 2 platinum electrode. तो ये हमारा जो आउटसाइड पार्ट है उसे हम लोग बोलेंगे ग्लास ट्यूब. ग्लास ट्यूब, and inside the glass tube we are having 2 platinum electrode और platinum plates. ये दोनों platinum electrodes है और platinum plates है. Okay, so what is here? The conductivity cell consists of glass tube with 2 platinum plates and platinum plates coated with platinum plate coated with platinum black. मतलब ये हमारे प्लैटिनम के प्लेट है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है वो प्लैटिनम के प्लेट्स है, और प्लैटिनम के प्लेट्स के ऊपर हमने और अच्छे प्लैटिनम का और कोटिंग भी दिया हुआ है. तो कोटेड विथ प्लैटिनम, प्लैटिनम प्लेट्स कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक. ओके, एंड देन दिस सेल is deep into the cell is deep into the solution, is deep into the solution whose क्या मेजर करेंगे हम लोग? फॉर द सोल्यूशन विल मेजर द रेजिस्टेंस, और सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के बाद हमें सोल्यूशन क्या क्या पता चलेगा? कंडक्टिविटी. ओके, तो जिस सोल्यूशन का मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना है उस सोल्यूशन का मुझे क्या पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो मैं apparatus यूज करूंगा उसे क्या बोलना है, या एक सेल यूज करूंगा उसे क्या बोलना है? कंडक्टिविटी सेल. सो व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल? सी, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब. एक ग्लास का ट्यूब है और ग्लास के ट्यूब के अंदर 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स है. ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रोड क्यों? बिकॉज वन एक्ट एज एनोड, अदर एक्ट एज कैथोड. तो 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स है, और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड के लोअर साइड में क्या अटैच किया? प्लैटिनम प्लेट है, और ये प्लैटिनम प्लेट्स के ऊपर हमने और अच्छे प्लैटिनम का कोटिंग दिया हुआ है. और ये पूरा ग्लास ट्यूब इलेक्ट्रोड के साथ हम लोगों ने सॉल्यूशन के अंदर क्या डीप किया है, और इस सॉल्यूशन का हमें क्या मेजर करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा. सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस पता चलने के बाद हमें सॉल्यूशन का क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी मिलेगा. लेकिन बात आगे का एक्सपेरिमेंट है. ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है, करेक्ट. अब ये जो हम यहाँ पे सेल यूज करने वाले हैं, ये सेल का एक कांस्टेंट है और उससे हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट. ये हमारा जो सेल है, ये सेल उसका एक कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल आर कॉल्ड एज अ सेल कांस्टेंट. व्हाट इज सेल कांस्टेंट? नाउ देखो, हमने फॉर्मूला देखा था. कंडक्टिविटी K is given by which formula? Conductivity K is given by which formula? G. G is what? Electrical conductance L upon A. हम लोगों ने L का देखो यहाँ पे G का मीनिंग क्या हम लोग देखा था? G is called as what? Electrical conductance. G is called as electrical conductance. L का मीनिंग हम लोगों ने क्या देखा था? L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर. ए का मीनिंग क्या देखा था? क्रॉस सेक्शनल एरिया. एरिया ऑफ कंडक्टर, करेक्ट. ये हम लोगों ने मीनिंग देखे थे. हमने स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा था. सो स्मॉल के का मतलब कंडक्टिविटी. सो स्मॉल के इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. तो ये हमारा कंडक्टिविटी के मीनिंग्स थे, करेक्ट. सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? G इंटू L अपॉन A. बाद में यहाँ पे G इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. हमारा जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस से रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो G के जगह मैंने क्या लिखा? 1 अपॉन R. G के जगह हम लोग, क्योंकि हमारे फॉर्मूला थे यहाँ मेरे पास, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. एक फॉर्मूला मेरे पास है, स्टार्टिंग में उन्होंने किया था कि G इक्वल टू 1 अपॉन R. तो G के जगह मैंने यहाँ पे 1 अपॉन R लिख दिया और यहाँ पे L अपॉन A लिखा.
L upon A, करेक्ट. बट नाउ यहाँ पे अभी हम लोग ए, नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, L है, हम लोग स्टार्टिंग में L का मीनिंग क्या लिया था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिया था. बट राइट नाउ हियर अभी L का मतलब क्या हम लोग करेंगे, L का मतलब होगा यहाँ पे डिस्टेंस रेशियो. L का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन two electrodes, distance between two electrodes, करेक्ट. एंड ए का मतलब तो सेम रहेगा, ए का मतलब रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो एल का मीनिंग हमने लिया था लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिया था. ओके, बट जब हम लोग सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे, जब हमें सेल कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एल का मीनिंग क्या लेना है हमें, एल का मतलब क्या लेना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड. मतलब यहाँ पे जो हमारे दो इलेक्ट्रोड है, देखो ये इलेक्ट्रोड अगर रहेगा एनोड और ये अगर रहेगा कैथोड, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, करेक्ट, दोनों का बीच का डिस्टेंस. और ए का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, करेक्ट. यहाँ पे अभी एल का मीनिंग क्या होगा, एल स्टैंड्स फॉर व्हाट, मतलब जब हम लोग सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे, जब हम लोग सेल कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे एल का मीनिंग क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, करेक्ट. तो एंड हियर, so therefore cell constant, okay, cell constant is equal to L upon A. मतलब L मतलब distance between the two electrode, A मतलब cross sectional area between the two electrode, and L upon A is called as what, cell constant. मतलब जो length, distance between the two electrode and cross sectional area of the जो ratio है, ratio को हमें क्या बोलना है, cell constant बोलना है. क्या बोलना है, cell constant. What is cell constant? The cell constant is the ratio of separation L between two electrodes divided by the area of cross section A of the electrode. ओके, तो ये हमारा सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन हो गया. व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सी व्हाट इज सेल कांस्टेंट हियर, इट इज द रेशियो ऑफ, देखो ये रेशियो है, रेशियो किसका है, एल अपॉन ए. एल का मतलब रेशियो ऑफ सेपरेशन ऑफ द बिटवीन, सेपरेशन का मतलब डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस भी लिख सकते हो. इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड. मतलब अगर तुम्हें वर्ड लिखना है सेपरेशन, तो सेपरेशन लिखो, और अगर सेपरेशन नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ distance between the two electrode divided by the area of cross section A of the electrode are called as what, cell constant, are called as a cell constant. ये हमारा cell constant का फॉर्मूला, cell constant क्या आएगा, L upon A. Okay, 1 minute, let me turn the page. तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, देखो cell constant is equal to L upon A. Now cell constant is given by which symbol, B. ये हमारे सेल कांस्टेंट का सिंबल B है, सो B इज इक्वल टू L अपॉन A. B इज इक्वल टू L अपॉन A, करेक्ट. तो अभी देखो यहाँ पे हमारा, पहले हमें इसका यूनिट देखना है. तो व्हाट इज यूनिट, द SI यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट,
एसआई यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या आएगा? एसआई यूनिट देखो, अगर मुझे एसआई यूनिट अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो देखो B इज इक्वल टू L अपॉन A। L का मतलब लेंथ, लेंथ इज इन द मीटर, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है। एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। इज इक्वल टू, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन मीटर, एंड 1 अपॉन मीटर इज इक्वल टू व्हाट? पर मीटर। मतलब SI यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज पर मीटर। SI यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज पर मीटर। बट हमें नॉर्मली SI यूनिट नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉमन यूनिट यूज करेंगे। देयरफॉर द कॉमन यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज पर सेंटीमीटर। मतलब सेल कॉमन यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? पर सेंटीमीटर रहेगा। मतलब यहाँ पे रहेगा सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल तो क्या आएगा? 1 अपॉन सेंटीमीटर, तो आएगा पर सेंटीमीटर। देखो SI यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज पर मीटर एंड द कॉमन यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज पर सेंटीमीटर। तो हमारा सेल कांस्टेंट का यूनिट हुआ। अभी देखो मेरा ये फॉर्मूला था, देखो ये फॉर्मूला क्या था मेरा? K इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। सॉरी, राइट डाउन ये फॉर्मूला, K इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। बट अभी हमने यहाँ पे देखा कि L अपॉन A इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल कांस्टेंट। L अपॉन A इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे K इक्वल टू 1 upon R and L upon A is called as a cell constant. Correct? L upon cell, and therefore K is what? Conductivity equal to cell constant into 1 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cell constant आ जाएगा and divided by what? R आ जाएगा। करेक्ट? सो मतलब अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा तो पहले वो सेल का मुझे क्या मालूम होना चाहिए? सेल कांस्टेंट मालूम होना चाहिए, सेल का सेल कांस्टेंट मालूम होना चाहिए, और सॉल्यूशन का क्या मालूम होना चाहिए? आर। आर मतलब व्हाट? रेजिस्टेंस। आर मतलब रेजिस्टेंस। ये सेम फॉर्मूला कैन बी आल्सो रिटन एज, और ये फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हैं? सेल कांस्टेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, मुझे सेल कांस्टेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? के का मतलब कंडक्टिविटी एंड आर का मतलब रेजिस्टेंस। मतलब अगर मुझे सेल का कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे पहले क्या मालूम होना चाहिए? कंडक्टिविटी, और मुझे क्या मालूम होना चाहिए? रेजिस्टेंस। तो हम सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई विल जस्ट रिपीट अगेन। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एम क्या है आज के एक्सपेरिमेंट का? अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड किया रहेगा, अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड मतलब कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और उस सॉल्यूशन का मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना है, तो मुझे सबसे पहले उस सॉल्यूशन का क्या मेजर करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। और सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मैं कौन से एक्सपेरिमेंट से मेजर करूंगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे क्या यूज करना है? कंडक्टिविटी सेल यूज करना है। तो पहले हम लोग कंडक्टिविटी सेल का कंस्ट्रक्शन देखा। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब with two platinum electrode coated with platinum black and deep into the solution. अब ये सेल जो हमारे पास है उसका कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट। सेल के कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। एंड व्हाट इज सिंबल फॉर सेल कांस्टेंट? बी। सेल कांस्टेंट सिंबल इज बी। तो हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था K इक्वल टू G इंटू L अपॉन A। G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन R लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अभी मीनिंग लेना है मुझे। L का मतलब क्या मीनिंग लेना है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। और A का मतलब क्या लेना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। सो L अपॉन A इज कॉल्ड एज अ सेल कांस्टेंट। करेक्ट? R इज द रेजिस्टेंस एंड K इज द कंडक्टिविटी। मैंने सेम फॉर्मूला में क्या लिखा? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L अपॉन A। तो मैंने यहाँ पे सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन दिया। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है हमारे पास, रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। यस सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे स्मॉल ए क्यों लिया?
नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे स्मॉल एक्चुअली कैपिटल ए भी ले सकते हो, स्मॉल ए भी ले सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने कैपिटल ए लिखा था और यहाँ पे हम लोग स्मॉल ए लिख रहे हैं, लेकिन दोनों का Okay, मीनिंग ओके सर। ओके। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट क्या आएगा? इट इज द रेशियो बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये हमारा सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन हो गया। फिर सेल कांस्टेंट क्या आएगा? बी। सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या है? देखो बी। बी इक्वल टू व्हाट? एल अपॉन ए। और सेल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या है? पर मीटर। और सेल कांस्टेंट का कॉमन यूनिट क्या आ रहा है? पर सेंटीमीटर। और लास्ट में K equal to 1 upon R into L upon A. L upon A is called as the cell constant. Or so conductivity is equal to what? Cell constant upon R. Therefore, cell constant is equal to क्या मिला? K into R. मतलब अगर मुझे सबसे पहले कंडक्टिविटी सेल यूज करना है, कंडक्टिविटी सेल का अगर मुझे कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो कंडक्टिविटी का कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? K। K मतलब कंडक्टिविटी एंड R मतलब रेजिस्टेंस। तो अभी हमें देखना है एक कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, करेक्ट? तो एटलीस्ट तुम्हें यहाँ तक क्लियर है। तो अभी मैंने इतना ही देखा एक्सपेरिमेंट कि अगर मुझे कोई सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो मुझे उस सॉल्यूशन का मेजर करना पड़ेगा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मैं apparatus यूज करूंगा उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज के पहले मुझे एक apparatus यूज करना पड़ेगा कंडक्टिविटी सेल। और वो सेल का जो कांस्टेंट है उसे हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? K इंटू आर। K इंटू आर, करेक्ट? तो अभी हमें देखना है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। और अगर मुझे K और R अगर दोनों मालूम है तो मुझे कौन सा वैल्यू पता चल जाएगा? सेल कांस्टेंट के बारे में, ठीक है? तो नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग। 1 मिनट, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन पूरा कंसेप्ट होने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। यस, नाउ आई एम गोइंग फॉर हियर द डिटर्मिनेशन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ conductivity consists of 3 steps। मतलब अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप्स, करेक्ट? तो इन दैट 3 स्टेप द फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन of cell constant। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। अभी कैसे? तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट कैसे आएगा? देखो ये अगर मुझे कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए? सेल कांस्टेंट मालूम होना चाहिए। और मुझे क्या मालूम होना चाहिए? R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे और बाद में R फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट? तो हमें क्या मिल जाएगा? कंडक्टिविटी मिल जाएगा। तो पहले सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना, ओके? तो अभी देखो डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे डिसाइड करना? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है? हियर द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई कैन से हियर द सेल कांस्टेंट, the cell constant is determined by using 1 molar, 0.1 molar or 0.01 molar KCl solution। मतलब अगर मुझे सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे कौन सा सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा? KCl सॉल्यूशन। और KCl के कॉन्सेंट्रेशंस क्या रहेंगे? आइदर 1 मोलार और 0.1 मोलार और 0.0, तीनों में से कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन आपको लेना है। मतलब आप जो KCl सॉल्यूशन मतलब पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो आप यूज करोगे, कॉन्सेंट्रेशन में भी 1 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन में भी 0.1 मोलार और कॉन्सेंट्रेशन में भी 0.01 मोलार, तीनों में से कोई एक रहेगा, करेक्ट?
देन सेकेंड पॉइंट क्या होता है, द कंडक्टिविटी, the conductivity of KCl solution at various concentration are known. देखो कंडक्टिविटी ऑफ द केसीएल मतलब अगर सबसे पहले अगर देखो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मुझे सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या यूज करना है, केसीएल सॉल्यूशन यूज करना है। और केसीएल क्यों, क्योंकि मुझे केसीएल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मालूम है, मतलब अगर मेरे पास 1 मोलर केसीएल है तो मुझे उसका कंडक्टिविटी मालूम है, अगर मेरे पास 0.1 मोलर केसीएल है तो मुझे उसका कंडक्टिविटी मालूम है, और अगर मेरे पास 0.01 मोलर केस का मुझे कंडक्टिविटी मालूम है। ऐसे क्यों, क्योंकि देखो अगर मुझे सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, के का मतलब कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर मैंने केसीएल सॉल्यूशन अगर यूज कर दिया तो मुझे केसीएल का कंडक्टिविटी मालूम है, तो खाली अभी मुझे केसीएल का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हियर the conductivity of the KCl solution at various concentrations are known, मतलब हमें KCl solution का कंडक्टिविटी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे मालूम है, मतलब ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। So now what is the third step here? And therefore, yes, yes, therefore the resistance of KCl solution, resistance of the KCl solution can be determined or can be measured by using Wheatstone bridge। देखो अगर मुझे सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, K इंटू आर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ K? K मतलब कंडक्टिविटी। अभी कंडक्टिविटी मुझे मालूम है, कैसे मुझे मालूम है कंडक्टिविटी? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने केसीएल का कौन कौन सा सोल्यूशन यूज करना है, 1 मोलर, 0.1 मोलर है, 0.0 में से कोई एक, तीनों में से कोई भी एक सोल्यूशन अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे उसका कंडक्टिविटी मालूम है। तो मुझे केसीएल का क्या फाइंड आउट करना है, therefore the resistance of the KCl मुझे मेजर करना है। कैसे मेजर करना है मुझे? by using the Wheatstone bridge, by using Wheatstone bridge मुझे मेजर करना है। ओके तो अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे Wheatstone bridge का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम कैसे आएगा देखो, मे भी आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल किया होगा, 11th स्टैंडर्ड में Wheatstone bridge का तो थोड़ा बहुत पता होगा। See Wheatstone bridge, here this is one arm of the Wheatstone bridge, this is the other arm of the Wheatstone bridge, the two arm, and this is the resistance wire. Okay, see this is the RX. RX matlab this is called as a known resistance. से हम लोग क्या बोलेंगे, known resistance। known मतलब यहाँ से कितना, देखो आई थिंक मे बी इन द कॉलेज में देखो रेजिस्टेंस बॉक्स, देखो रेजिस्टेंस बॉक्स जिसे हम लोग रिमूव करते हैं 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के वन आर्म में क्या दिया है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, करेक्ट, जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम है। सेकेंड आर्म, ये जो सेकेंड आर्म है इससे हम लोग ने क्या कनेक्ट किया है, इसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, ये दो इलेक्ट्रोड्स है, एक ग्लास ट्यूब है, दो इलेक्ट्रोड, एक ग्लास ट्यूब, एंड दे आर इमर्स इनटू द सॉल्यूशन ऑफ, यहां पे मैंने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मतलब अभी मैंने यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन यूज किया इधर बीकर में, आई हैव यूज्ड विद सॉल्यूशन हियर इन द बीकर KCl।
KCl में से तीनों में से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन है, KCl का तीनों में से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोलार 0. तीनों में से कोई एक, जिसका कंडक्टिविटी मुझे मालूम है, और उस सॉल्यूशन का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे इस बीकर में जो मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है, किसका सॉल्यूशन है स्टार्टिंग में, पोटेशियम क्लोराइड का। यहाँ पे जो सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है, मुझे उस सॉल्यूशन का के मतलब कंडक्टिविटी मालूम है, मुझे इस सॉल्यूशन का क्या फाइंड आउट करना है, आर मतलब क्या फाइंड आउट करना है, मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के एक आर्म में क्या कनेक्ट किया है आपने, व्हीटस्टोन ब्रिज के एक आर्म में कनेक्ट किया है नोन रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज के दूसरे आर्म में क्या कनेक्ट किया है, कंडक्टिविटी सेल, क्या कनेक्ट किया हुआ, कंडक्टिविटी सेल। और एक कंडक्टिविटी सेल कहां पे डिप किया है, KCl सॉल्यूशन में, और आपको KCl सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मालूम है और KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, करेक्ट। अभी यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस वायर है, ये हमारा रेजिस्टेंस वायर है, और ये रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड टू, resistance wire is connected to the alternating current, ओके। ये हमारा वायर है AB, ये रेजिस्टेंस वायर है, यहाँ पे वायर इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। अभी वर्किंग कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे वर्किंग, उसके पहले यहाँ पे रहेगा हमारा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज द डिटेक्टर, मे बी इन द फिजिक्स प्रैक्टिकल तुमने देखा होगा, जैसे हम लोग सर्किट ऑन करते हैं, सर्किट ऑन करने के बाद इमीडिएटली गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन, मतलब अगर हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन पता चलेगा, तो इसे बोलते हैं हम डिटेक्टर। एंड दिस डिटेक्टर इज connected to a sliding contact F, where F is called as a sliding, it is called as a sliding contact, ये हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ओके, मतलब हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो, जब मैंने AB वायर सब कनेक्ट किया, सर्किट ऑन कर दिया, द मिनट आई विल पुट द सर्किट ऑन, इमीडिएटली गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, ये हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, द डिफ्लेक्शन मे बी ऑन द लेफ्ट और मे बी ऑन द राइट, तो तुम्हें थोड़ा अच्छे से मालूम रहेगा। लेकिन अभी ये डिफ्लेक्शन मुझे क्या करना है, डिफ्लेक्शन मुझे 0 पे लेके आना है। देखो जैसे मैं करंट फ्लो करूंगा, ये यहाँ पे जो डिटेक्टर D है, तो डिटेक्टर D यहाँ तक डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से डिफ्लेक्शन इधर तक लेके आना है, मुझे यहाँ तक डिफ्लेक्शन लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो मेरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये जो जॉकी है, जैसे फिजिक्स प्रैक्टिकल में व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में जॉकी बोलते हो, ये जॉकी या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कहाँ पे रखना है, B पे रखना है, B पे रखना है, और B पे रखने के बाद ऐसा पीछे पीछे लेके चलो, एक पीछे लेके चलो, और जैसे तुम पॉइंटर पीछे पीछे लेते जाओगे, वैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम होगा, और जब आपको डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा, 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा, तब वहां पे स्टॉप करो, और दैट पॉइंट कैन बी लेबल एज व्हाट, C, द पॉइंट कैन बी लेबल एज व्हाट, C, तो मुझे C पॉइंट मिल जाएगा, और बाद में हमें लेंथ AC मालूम है, लेंथ CB मालूम है, तो लेंथ AC जो मुझे मिलेगा, लेंथ AC will corresponds to the resistance of KCl, and length CB जो मुझे मिलेगा वो किससे प्रोपोर्शनेट रहेगा, Rx, मतलब नोन। So I'll write down the formula here, that is according to Wheatstone bridge principle, according to Wheatstone bridge principle, द यहाँ पे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शन में रहेगा, लेंथ AC के प्रोपोर्शन में रहेगा, तो लेंथ AC इक्वल टू, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा नोन, ये रेजिस्टेंस मुझे मालूम है, Rx इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ CB। एक मिनट, और डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या मेरे साइड से, ये स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। नो सर। ओके ठीक है, थैंक यू।
ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, देखो हमें इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है, इसका रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना है, तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शन में आएगा, लेंथ एसी के प्रोपोर्शन। एसी क्यों, बिकॉज हमारा पहले जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था या जॉकी था, पहले कहाँ पे रखा था, पॉइंट बी पे रखा था, तब मेरा डिफ्लेक्शन यहाँ पे था। मैंने ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको धीरे धीरे से पीछे पीछे करके यहाँ तक लेके आया, और जब मेरा ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गया, मुझे डिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 मिला। डिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 मतलब अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, फिर लेंथ एसी मेजर कर दिया, लेंथ सीबी मेजर कर दिया। लेंथ एसी किससे करस्पॉन्ड करेगा, ये रेजिस्टेंस के साथ, और लेंथ सीबी किसके करस्पॉन्ड करेगा, आरएक्स के साथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज डिवाइडेड बाय लेंथ एसी इक्वल टू नोन रेजिस्टेंस आरएक्स डिवाइडेड बाय लेंथ सीबी। तो अभी देखो मुझे लेंथ एसी मालूम है, मुझे लेंथ सीबी मालूम है, यहां से कितना ओ मैंने निकाला वो भी मुझे मालूम है, तो मुझे आर फाइंड आउट कर सकता हूं। देयरफॉर आई विल हैव द फॉर्मूला हियर, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये यहां पे चला जाएगा, लेंथ एसी अपॉन लेंथ सीबी या बीसी इनटू आरएक्स। तो ये मुझे आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा, करेक्ट। तो देखो ये मेरा कंडक्टिविटी सेल था, कंडक्टिविटी सेल सोल्यूशन कौन से सॉल्यूशन में डीप किया है हम लोगों ने, केसीएल सॉल्यूशन में डीप किया है। ये केसीएल का मुझे कंडक्टिविटी मालूम है, मुझे केसीएल का क्या मेजर करना था, रेजिस्टेंस मेजर करना था, और मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी देखो सेल कांस्टेंट, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के इनटू आर। तो के का मतलब क्या था, कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल, आर का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ द केसीएल। तो मुझे दोनों वैल्यू अगर मुझे मालूम है तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये मुझे सेल कांस्टेंट मिल गया, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये सेल कांस्टेंट हो गया। और अभी आगे देखते हैं, तो हियर आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला, एक मिनट। Therefore, cell constant, what is symbol for cell constant B? Cell constant is equal to conductivity of the KCl into resistance of KCl. मुझे KCl का कंडक्टिविटी मालूम था, रेजिस्टेंस का KCl मैंने फाइंड, ये मेरे सेल कांस्टेंट मिल गया, करेक्ट। आई विल एक्सप्लेन अगेन। देखो पहले हम लोग देखो द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी, अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी मेजर करना है तो हमारे पास 3 स्टेप्स है। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या यूज करना है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, तीनों में से कोई एक। तीनों में से कोई एक क्यों, बिकॉज ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन पे हमें KCl का कंडक्टिविटी मालूम है। द कंडक्टिविटी ऑफ द KCl सॉल्यूशन एट वेरियस कॉन्सेंट्रेशन आर नोन। तो अभी मुझे KCl का क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग व्हिच एक्सपेरिमेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, जब फिजिक्स प्रैक्टिकल में तुम करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के वन आर्म मतलब वन साइड में क्या कनेक्ट करोगे, नॉन रेजिस्टेंस, ये तुम्हें मालूम है। व्हीटस्टोन ब्रिज के दूसरे साइड में क्या कनेक्ट करोगे, कंडक्टिविटी सेल। और ये हमारा कंडक्टिविटी सेल किसमें डीप किया हुआ है, आपने KCl में डीप किया हुआ है, और हमें KCl का क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, करेक्ट। बाद में दोनों साइड और आर्म किसे कनेक्ट किया, AB वायर को कनेक्ट किया, और AB वायर कनेक्टेड टुवर्ड अल्टरनेटिंग करंट। देन when you, D is called as a detector मतलब गैल्वेनोमीटर बोल सकते हो, और F is called as a sliding contact। सबसे पहले स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कहां पे रखा, B पे रखा, तो गैल्वेनोमीटर का इतना डिफ्लेक्शन हमारा आ रहा था। लेकिन मैंने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पीछे पीछे लेके गया, डिफ्लेक्शन भी कम हो गया, डिफ्लेक्शन कहां पे आ गया, 0 पे आ गया। और जब मेरा डिफ्लेक्शन 0 पे आया तब मैंने लेंथ AC और लेंथ CB मेजर कर दिया, करे तो मुझे दोनों लेंथ मालूम है, यहाँ से कितना RX निकाला वो भी मुझे मालूम है, तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। और एक बार अगर मुझे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल गया तो फिर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टिविटी ऑफ द KCl इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द KCl। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। अभी देखो हमें सेल कांस्टेंट मालूम हो गया, तो सेल कांस्टेंट के बाद हमें मुझे क्या फाइंड, कंडक्टिविटी करना है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, ये मुझे मालूम है। अभी आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी ये सॉल्यूशन कौन सा, तो जिस सॉल्यूशन का मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना है।
देखो सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज करना है। लेकिन अभी आर मुझे क्या है, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट अभी हम लोग आएंगे। सेकंड पार्ट के लिए क्या आएगा, देखो हियर सेकंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ conductivity, determination of conductivity of given solution। अभी उन्होंने हमें कोई एक एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन दिया हुआ है और मुझे उस सॉल्यूशन का क्या फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी फाइंड। फॉर एग्जांपल मुझे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया हुआ है और सिल्वर नाइट्रेट का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी। तो अगर मुझे सिल्वर नाइट्रेट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो मेरे पास सेल कांस्टेंट तो अभी मुझे मालूम है, तो मुझे सिल्वर नाइट्रेट का क्या मेजर करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। मतलब जिस सॉल्यूशन का मुझे कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है उस सॉल्यूशन का मुझे क्या मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो मैं सेल यूज करने वाला हूँ उसका सेल कांस्टेंट मुझे ऑलरेडी मालूम है, तो मुझे उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी हियर डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। तो कैसे करना है यहाँ पे हमें, अभी सेकेंड पार्ट में क्या रहेगा, देखो यहाँ पे इधर अभी बीकर में देखो पूरा एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा, पूरा एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। अभी मुझे क्या करना है, खाली बीकर में इस सॉल्यूशन को केसीएल को रिप्लेस करना है, मुझे केसीएल बीकर में से निकालना है। अभी मैं क्या करूंगा, देखो अगेन आई विल कनेक्ट द सेम एक्सपेरिमेंट हियर। सी आई विल हैव हियर द वन आर्म ऑफ द स्टोन ब्रिज, other arm I will have the known resistance Rx, correct? They are connected to the wire AB. AB is connected to the alternating current AC, okay? And then here it is connected to the detector and the detector is connected to the sliding contact. Same है। अभी यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरा कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल है, conductivity cell is deep, conductivity cell is deep into the solution of, or you can say given solution। given solution का मतलब जिस solution का तुम्हें conductivity find out करना है वो solution अभी यहाँ पे ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे solution कौन सा लिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट। तो अभी मुझे सिल्वर नाइट्रेट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ, करेक्ट? तो पूरा एक्सपेरिमेंट सेम है। देखो अगेन हियर स्टोन ब्रिज के एक आर्म में क्या कनेक्ट कर रहे हो, डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? यस नो सर, ये तो है, नहीं नहीं। ओके ठीक है। ओके सी हियर diagrams is same, one arm of the stone bridge contain Rx known resistance, ये known है, ये इसका वैल्यू हमें मालूम है, known resistance। स्टोन ब्रिज के दूसरे आर्म में क्या कनेक्ट किया हम लोगों ने, ये कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल। लेकिन अभी यहाँ पे सेल मतलब इसका बी का वैल्यू मुझे मालूम है, और ये कंडक्टिविटी सेल को किसमें डीप किया आपने, सिल्वर नाइट्रेट में डीप किया है। और मुझे सिल्वर नाइट्रेट का क्या डिटरमाइन करना है, रेजिस्टेंस। सिल्वर नाइट्रेट का मुझे क्या डिटरमाइन करना है, रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना। तो अगेन एक्सपेरिमेंट सेम है, जैसे सर्किट ऑन करोगे इमीडिएटली गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, डी मतलब डिटेक्टर, इट विल शो सम डिफ्लेक्शन। अभी डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में बी के पास रखूंगा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बी के पास रखूंगा, तो स्लोली स्लोली उसको ए की तरफ लेके जाऊंगा। वैसे डिफ्लेक्शन कम होते कितना आएगा, 0 आएगा, करेक्ट? और यहाँ पे आने के बाद, सी पे आने के बाद डिफ्लेक्शन 0 हुआ। तो अभी मुझे लेंथ एसी मालूम है, लेंथ एसी क्या रहेगा, लेंथ एसी विल करस्पॉन्ड्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, लेंथ सीबी विल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ आरएक्स। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, देखो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन लेंथ एसी equal to resistance of Rx upon length CB।
तो अभी देखो मुझे लेंथ AC मालूम है, मुझे यहाँ पे लेंथ CB मालूम है, दोनों लेंथ मुझे मालूम है, RX का मतलब नॉन रेजिस्टेंस भी मुझे मालूम है, तो मुझे क्या फाइंड मिलेगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन का, सिल्वर नाइट्रेट का। तो हियर आई राइट डाउन हियर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट, ये एग्जांपल लिया मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ AC, यहाँ पे चला जाएगा तो इधर क्या मिलेगा, लेंथ AC अपॉन लेंथ CB इंटू RX, लेंथ AC अपॉन लेंथ CB इंटू RX। तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट मिल जाएगा, करेक्ट। एंड फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा K का मतलब क्या आएगा, कंडक्टिविटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, जो मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू R का मतलब क्या आएगा, देखो रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो हमें क्या करना है, जब हम सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे तब बीकर में क्या लेना है, पोटेशियम क्लोराइड लेना है, और सेल कांस्टेंट मिलने के बाद पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय विच सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और फिर सिल्वर नाइट्रेट का क्या मेजर करोगे, रेजिस्टेंस मेजर करोगे, और रेजिस्टेंस मालूम है, सेल कांस्टेंट मालूम है, क्या फाइंड करोगे, कंडक्टिविटी मिल जाएगा। और एक बार तुम्हें कंडक्टिविटी मिल गया, देन हमारा थर्ड स्टेप आएगा। द थर्ड स्टेप विल बी व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ, थर्ड स्टेप विल बी कैलकुलेशन ऑफ molar conductivity, and we all know what is formula for molar conductivity. The molar conductivity lambda is equal to K into 1000 upon C. Lambda is equal to K into 1000 upon C. K मतलब कंडक्टिविटी, जो हमें सेकेंड स्टेप में मिल गया। तो कंडक्टिविटी मालूम है, करेक्ट। C का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे जो हमने सिल्वर नाइट्रेट जो यूज कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दो। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा फिर, मोलार कंडक्टिविटी, करेक्ट। तो इधर मुझे मिल जाएगा कंडक्टिविटी, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मोलार कंडक्टिविटी। मैं पूरा एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और जब हम लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, आई जस्ट रिपीट। देखो अभी यहाँ पे पता चला होगा, मुझे सिल्वर नाइट्रेट का क्या मेजर करना था, कंडक्टिविटी मेजर करना था। तो मैंने सिल्वर नाइट्रेट का क्या फाइंड आउट कर दिया, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। और सिल्वर नाइट्रेट का रेजिस्टेंस कौन से एक्सपेरिमेंट से मुझे मिला, व्हीटस्टोन ब्रिज से मिला, मतलब। और एक बार रेजिस्टेंस मुझे मिल गया, फिर यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, तो मुझे कंडक्टिविटी मिला, और कंडक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया तो क्या मिला, मोलर कंडक्टिविटी मिला। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, देखो व्हाट वाज द एम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले कि अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो मुझे सॉल्यूशन का क्या मेजर करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। और सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस में कैसे मेजर करूंगा, बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, करेक्ट। अभी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, apparatus। देखो हम डायग्राम में देखा, सॉल्यूशन का अगर मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है, मुझे किसकी जरूरत है, कंडक्टिविटी सेल की जरूरत है, कंडक्टिविटी सेल। तो हमने कंडक्टिविटी सेल के बारे में स्टडी किया। व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल, अ ग्लास ट्यूब containing 2 platinum plate and platinum plate coated with what, platinum black, and these platinum plate are dipped into the solution, और जिसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो हम सेल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये सेल हमारा एक कांस्टेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। लेकिन उसके पहले सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के पहले हमारा फॉर्मूला था कंडक्टिविटी का। क्या फॉर्मूला था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू L अपॉन A। लेकिन वो टाइम पे L का मीनिंग क्या लिया था हम लोगों ने, लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिया था, करेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे L का मीनिंग G के जगह क्या लिखा मैंने, G के जगह मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन R लिखा। G के जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 अपॉन R लिखा। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू L अपॉन A, 1 upon R is equal to L upon A. What is L here?
the distance between the two electrode. What is A stand for? Cross-sectional area of the electrode, or L upon A is called as the cell constant. So what is cell constant? It is the ratio of the distance between the two electrode divided by the cross-sectional area of the electrode are called as the cell constant. Okay, और ये cell constant मिलने के बाद देखो सेल कांस्टेंट क्या था हमारा? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल अपॉन ए. सेल कांस्टेंट का सिंबल पी है. सेल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या है? देखो पर मीटर है. सेल कांस्टेंट का कॉमन यूनिट क्या है? पर सेंटीमीटर है. फिर यहाँ पे एल अपॉन ए लिखा, बट एल अपॉन ए मतलब सेल कांस्टेंट, तो के इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर. मतलब अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन मुझे सेल कांस्टेंट मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के इनटू आर. तो सबसे पहले हमने देखा हाउ टू फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट. करेक्ट. तो सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने? तो हमारे तो डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना है? पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज करना है. पोटेशियम क्लोराइड के कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन यूज करने हैं? 1 मोलार, 0.1 मोलार या 0. तीनों में से कोई एक. तीनों में से कोई एक क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन पे पोटेशियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी हमें मालूम है. तो कंडक्टिविटी अगर मुझे मालूम है तो मुझे पोटेशियम क्लोराइड का क्या मेजर करना पड़ेगा? खाली रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा. और पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस में मेजर करूंगा बाय यूजिंग व्हिच एक्सपेरिमेंट? व्हीटस्टोन ब्रिज. तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट है. व्हीटस्टोन ब्रिज के एक साइड में नॉन रेजिस्टेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज के दूसरे साइड में कंडक्टिविटी सेल है, और कंडक्टिविटी सेल में किसको टिप किया आपने? पोटेशियम क्लोराइड में टिप किया है. पोटेशियम क्लोराइड का आपको कंडक्टिविटी मालूम है और पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया और यहाँ पे आपको पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस मिल गया. पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस मिल गया. और एक बार आपको पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस मिल गया, देखो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी मालूम था, पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस तुम्हें मालूम मिल गया, तो क्या मिला? सेल कांस्टेंट मिल गया. तो अभी तुम्हारे पास सेल कांस्टेंट आ गया. अभी हमें जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा, जो भी सॉल्यूशन मुझे दिया रहेगा सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को क्या करना है? KCl के जगह सिल्वर नाइट्रेट है. मतलब KCl सॉल्यूशन इन द बीकर इज रिप्लेस्ड बाय सिल्वर नाइट्रेट. तो अभी क्या होगा? हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के एक आर्म में आ जाएगा नॉन रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज के दूसरे आर्म में आ जाएगा कंडक्टिविटी सेल. बट नाउ द कंडक्टिविटी सेल इज डिप इनटू द गिवन सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन अलग अलग रहेगा. हमारा जो भी एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा द कंडक्टिविटी सेल इज डिप इनटू विच सॉल्यूशन? सिल्वर नाइट्रेट. तो अभी यहाँ पे मैं वापस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा और मुझे क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिल गया. फिर ये मेरा फॉर्मूला था K इक्वल टू सेल कांस्टेंट मुझे स्टेप 1 से मिला था, रेजिस्टेंस मुझे स्टेप 2 से मिला. ये हमारा स्टेप 2 था. डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन स्टेप 2 था. स्टेप 2 से मुझे रेजिस्टेंस मिला तो मुझे K मिल गया. और एक बार मुझे K मिल गया फिर मुझे क्या फाइंड करना है? मोलर कंडक्टिविटी. एंड व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? लैम्बडा इज इक्वल टू K इनटू 1000 अपॉन C. इस तरह हम लोग सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. करेक्ट. तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल पार्ट हुआ. इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. हेलो सर. डाउट? यस सर, जे सेल असतं ते फक्त प्लॅटिनमचं असतं की प्लॅटिनम आणि सोल्युशन दोघे मिळून सेल बनतात? नाही नाही, सेल म्हणजे हा सेल म्हणजे फक्त प्लॅटिनम प्लेट आहे. फक्त प्लॅटिनम प्लेट आहेत, बरोबर. आणि प्लॅटिनम प्लेट आपण वेगवेगळ्या सोल्युशन मध्ये डीप करतो. म्हणजे ग्लास ट्यूब असते, ग्लास ट्यूब, आणि ह्या प्लॅटिनम प्लेट असतात, त्यांचा फक्त सेल बनलेला असतो. ओके सर.